Good morning, students. Welcome back after your summer vacation. I hope आपने उसमें कुछ पढ़ा होगा. Now we have to start with chapter number 8, that is human health and disease. Due to this COVID-19 crisis, some of syllabus is reduced, or we can say removed from the entire syllabus. So I'll make a separate video on the, we can say, updated syllabus. तो कुछ पैनिक नहीं होना है. कुछ हमने काम कर रखा है वो हटा दिया गया है, और we can say some of work is pending that we have to do in upcoming days. So this is the chapter number 8, that is human health and disease. So there are two words, one is health and other is disease. We already studied in brief about the health and disease in chapter number 4, and where we discuss about the reproductive health. We have seen that what is reproductive health, what are the different diseases related to the reproductive health, and how we can cure them. So the simple thing is, one word is health and second is disease. The both words are opposite to each other. Health means well-being in social, physical and mental. That means three words we have to use here. One is social, second is mental, and third is physical. If any person is well-being in these three areas, then we can say someone is healthy. So there are two words. One is known as healthy and other is known as disease free. Disease free means that means there is no disease in body. Healthy means ki well-being in all aspect. We all are, in my views or in my theory, we can say we all are disease free, but we are not healthy. We are suffering from any kind of, we can say, social, mental or physical type of, we can say, any type of deficiency or any kind of other problem. So that means very few person are, we can say, healthy, totally healthy hai. Maybe we are suffering from any social issue, maybe are we suffering from any mental issue, or maybe are suffering from any physical issues. किसी को वेट ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, किसी को वेट कम है तो प्रॉब्लम है, किसी को अपने कलर से प्रॉब्लम है, किसी को किसी से प्रॉब्लम है. तो दैट मीन्स वी कैन से वी आर नॉट, वी कैन से फिजिकली और मेंटली वी कैन से नॉट वेल बीइंग. तो वो कैसे हम कर सकते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अच्छा खाना खा के, एक्सरसाइज करके, योगा करके, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छी सोच रख के, हमेशा पॉजिटिव सोच के, अपने दोस्तों से मिल के. दैट मीन्स देर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन इंगेज आवरसेल्फ, और हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. सो वन वर्ड इज हेल्दी, दैट मीन्स ऑल एस्पेक्ट में. सेकंड वन इज डिजीज फ्री. लाइक मैं अब मेरी बात करूं तो आई कैन से कि आई एम डिजीज फ्री राइट नाउ. मेरी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज नहीं है. तो डिजीज क्या है? डिजीज वी कैन से देयर आर टू वर्ड इन डिजीज. वन इज दिस एंड सेकंड is. That means I am not able to perform my work efficiently or properly. Then we can say something is the problem in my body. अब मैं जैसे यहाँ पर खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा हो, या बात अच्छी नहीं आ रही हो, या मैं खड़ा नहीं ना रह पा रहा हूँ, या मेरी बॉडी में वीकनेस है, तो I cannot perform my work. So that in that condition I can say कि there is any kind of disease in my body. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, right now I am teaching you और आई एम स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू, दैट मीन्स वी कैन से आई एम डिजीज फ्री. तो थोड़ा सा डिफरेंस है हेल्दी में और डिजीज फ्री में, वो आपको देखना है. तो हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ? तो हेल्थ के लिए जो सोशल है, तो उसके लिए सोशल एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा. जैसे लोगों से मिलो, बात करो, अच्छी किताबें पढ़ो, नेचर के साथ कनेक्ट रहो. अगर हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल के लिए जो सोशल चीजें हैं वही हमें मेंटल एक्सरसाइज में काम आती हैं. एक्सरसाइज है, योगा है, बहुत सारी चीजें. भी टॉक अबाउट फिजिकल, तो उसमें भी अलग अलग तरह के जो वर्कआउट है वो उसमें हो सकते हैं. लेकिन इसके अलावा और एस्पेक्ट है, जैसे पर्सनल एंड प्राइवेट हाइजीन है, या पब्लिक हाइजीन की बात करें, या डाइट है, या हमारा बेसिक रूटीन है, उठने का, सोने का, वो सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है. ओके, यू आर इन क्लास 12 एंड बायोलॉजी स्टूडेंट. आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग्स. तो आपको डिटेल में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. तो इसके अंदर आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है. नाउ आवर मेन फोकस ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज. सो डिजीजेज लाइक देयर आर 3 different kinds of disease. मैं जैसे कुछ नाम लिख रहा हूं, लाइक हियर one disease is, we can say, common cold. Other disease we can say malaria. Other disease we can say, we have studied that sickle cell, anemia,
और मैं कोई डिजीज करूं जैसे ओबेसिटी, और मैं कोई डिजीज करूं तो सिंपल एनीमिया है, और मैं कोई डिजीज की बात करूं तो जैसे कैंसर है। ओके, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज। नाउ कॉमन कोल्ड इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज with different symptom. Malaria is different kind of disease with different symptom. Sickle cell anemia is different kind of disease, and same obesity, anemia, or we can say cancer. So these are all different kinds of disease. इनके symptom है, इनका treatment है, वो क्या होगा, सबका अलग अलग होगा. Their mode of entry or we can say their infection. Like if someone is suffering from common cold, तो उसको यहाँ पर क्या होगा, upper respiratory tract में प्रॉब्लम होगी. If someone is suffering from malaria, तो उसको बार बार क्या होगा, cyclic fever होगा. If someone is suffering from sickle cell anemia, तो उसमें हमने जो सिकल सेल एनीमिया के पढ़े थे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ब्लड वेसल्स में आगे ब्लड नहीं जाएगा, सिकल सेल उसका हो जाएगा, ऑक्सीजन की वी कैन से जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी या उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. देन ओबेसिटी की बात करें तो इसकी अपने ही अलग से नुकसान है. एनीमिया की बात करें तो वीकनेस आएगी बॉडी में. फिर टॉक अबाउट कैंसर, देन डिफरेंट इफेक्ट्स आर और सिम्टम ऑफ कैंसर आर देयर. तो सब में कॉमन क्या है, बिकॉज द कॉमन थिंग इज दैट इन ऑल डिजीज, कि ये क्या है, डिजीजेज हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, डिसईज करती हैं. दैट मीन्स हमारी बॉडी को वीक करती हैं, काम नहीं कर देते. बट डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस देखें तो बहुत सारे अलग अलग इनमें क्या है, डिफरेंसेस हैं. सो वी कैन क्लासिफाई डिजीज इनटू टू मेजर ग्रुप. वन इज नोन एज इन्फेक्शियस एंड अदर इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस, एज द नेम इंडिकेट, इन्फेक्शियस मीन infection. Infection mean that mean any kind of we can say agent है जो disease cause कर रहा है. And here these agents are known as pathogens. Pathogens क्या होते हैं? Pathogens are disease causing organism or microbes. But microbes strictly word use नहीं करेंगे because some other pathogens are also there जो multicellular है, वो भी disease क्या है, cause करते हैं. तो we can say pathogens are disease causing agent. If any disease is caused by any kind of pathogen, then we can say these kind of disease is a infectious disease. So if we talk about common cold, तो क्या होती है, वायरस से होती है. We talk about malaria, तो प्लाज्मोडियम से होती है. तो we can say these two kind of disease are infectious disease. Okay. Now further we can divide the infectious disease into two category. One is contagious and other is non-contagious. अब देखो इसमें कंटेजियस वी कैन से कम्युनिकेबल डिजीज है, एंड हियर दिस इज द नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल दैट मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम और वी कैन से ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन. जैसे हम कोविड-19 की ही बात कर लें, ये क्या है, कम्युनिकेबल है. इन्फेक्शियस भी है एज वेल एज क्या है, कम्युनिकेबल है. दैट मीन्स वन ह्यूमन बीइंग टू और वन बॉडी टू अदर बॉडी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है. तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेबल और कंटेजियस. देन इन्फेक्शियस, तो इन्फेक्शियस दैट मीन्स डिजीज कॉजिंग यानी माइक्रोब्स या पैथोजन है, एंड पर्सन टू पर्सन वी कैन से ट्रांसमिट होता है, तो वो हो गया कम्युनिकेबल. तो कॉमन कोल्ड इसी तरह का डिजीज है. बट इफ यू टॉक अबाउट मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है, प्रोटोजोन है. बट दिस मलेरिया इज नॉन कंटेजियस और वी कैन से नॉन कम्युनिकेबल. ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती. जैसे मुझे मलेरिया है और मैं किसी के साथ कुछ शेयर करता हूँ, दैट मीन्स हैंड शेक करता हूँ और करता हूँ, तो वो स्प्रेड नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए क्या है, वेक्टर है, मॉस्किटो है. दैट मीन्स इट कैन स्प्रेड बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म और एनी अदर पैथोजन बट नॉट बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ टू ह्यूमन बीइंग्स. तो उसमें ऐसा नहीं होगा. तो हियर वी कैन से कि जो कॉमन कोल्ड है, हियर वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कॉमन कोल्ड एंड हियर वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ malaria. Okay, and both are caused by infectious agent or pathogen. तो वो infectious disease होगी, but this is communicable and this is non communicable. तो इसका ऐसे ध्यान रखना है. ये बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं. तो communicable है, जो infectious disease है वो किससे होगी, that means any external agent है, कोई पैथोजन है, वो उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. तो इसमें क्या है, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक पर्सनल हाइजीन है, पब्लिक हाइजीन है, वो सारी चीजें हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. लाइक मलेरिया, जैसे मलेरिया है वो ज्यादातर क्या है, जो लोग अच्छे घरों में रहते हैं, साफ सुथरी जगह पे रहते हैं,
किसी सेक्टर में रहते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। मलेरिया किनको होता है? जो किसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आसपास गंदा पानी खड़ा रहता हो, तो उनको क्या होता है? मलेरिया होता है। तो क्या डिफरेंस आया? तो दैट मीन्स पर्सनल प्राइवेट हाइजीन का या वी कैन से क्लीननेस का। तो उससे हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को। ओके, तो डिटेल पढ़ेंगे कुछ एक डिजीज की। सो डिजीज, इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ये दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। Now second kind of diseases are non-infectious disease. Non-infectious disease mean there is no involvement of any kind of pathogen. Pathogen mean disease causing agent. जैसे कोई भी disease causing agent नहीं है, फिर भी बॉडी में क्या है? डिजीज है। तो देर वी कैन से कुड बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी कैन से क्लासेस हो सकती है, ग्रुप हो सकते हैं एट माइक्रो लेवल, बट हम मैक्रो लेवल पे इसको मोटा मोटा पढ़ेंगे कि क्या क्या मेजर हो सकती है। जैसे आई हैव डिवाइडेड मेनी कैटेगरी हियर, लाइक डिजीज कुड बी जेनेटिक। नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर है वो इनहेरिटेड होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया देखा था, हीमोफीलिया देखा था, मैंने डिजीज इन मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो वो सारी की सारी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन जेनेटिक डिसऑर्डर देयर इज नो वी कैन से इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैथोजन और इन्फेक्शियस एजेंट। तो वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसकी हो सकती है? जैसे कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है तो एनीमिया के चांसेस है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो वेरी के चांसेस है। सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस है, वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। नाउ नेक्स्ट इज एलर्जिक। इन मैनी वी कैन से नाउ-डेज दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। कहते हैं ना कि इसको पेंट से एलर्जी है, इसको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। वी हैव स्टडीड अबाउट द एलर्जी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एक्ट एज एलर्जेंस। तो उसमें हमने चैप्टर 2 में ये देखा था कि पॉलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है। आजकल तो लोगों को लोगों से एलर्जी होनी शुरू होगी, तो दैट मीन्स वो एलर्जी है। नेक्स्ट वुड बी ऑफ डिजेनरेटिव टाइप। डिजेनरेटिव टाइप में क्या होता है कि दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोइम्यून डिजीज। हम एकदम डिजीज है वो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ऑटोइम्यून डिजीज है कि जिसमें बॉडी अपने खुद के ऑर्गन्स को क्या करती है? डिजेनरेट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट कुड बी ऑफ मेंटल। दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज थ्रू आउट द वर्ल्ड कि मेंटल प्रॉब्लम हो रही है लोगों में, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। ओके, तो वो भी हो सकती है। देन नेक्स्ट कुड बी एडिक्शन, लाइक एडिक्शन ऑफ वी कैन से, चाहे वो एल्कोहल का हो और वी कैन से एनी काइंड ऑफ अदर ड्रग हो, कोई भी ड्रग हो उसका एडिक्शन है, वो भी एक काइंड ऑफ डिजीज है। नाउ कैंसर, हियर वी कैन सी वी टॉक अबाउट कैंसर, वी कैन सी इज नॉट स्ट्रिक्टली नॉन इन्फेक्शियस, लाइक वी कैन से कैंसर वायरस और जो कैंसर के वायरस हैं, ओके, वो भी हैं कुछ जो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। कुछ जीन्स भी है, उनको जीन्स है, कई तरह की चीजें हैं। तो इसको स्ट्रिक्टली हम नहीं करते, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस में, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग एनी काइंड ऑफ वी कैन से इन्फेक्शियस एजेंट। नेक्स्ट कुड बी लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे किसी में ओबेसिटी है तो ये क्या हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। तो अच्छे से बैठ नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, कुछ वी कैन से ऐसा खाते हैं जिससे ओबेसिटी आती है, तो दिस कुड बी लाइफस्टाइल डिजीज। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो कुछ एक डिजीजेज हैं जो गिवन है, उसको हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। इफ वी क्लासिफाई द डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज बेस्ड ऑन देयर पैथोजेंस, कि व्हाट काइंड ऑफ पैथोजेंस आर देयर, तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली इन 5 ग्रुप। वन इज बैक्टीरियल डिजीजेज, देन वायरल डिजीजेज, प्रोटोजोन डिजीजेज, फंगल डिजीजेज एंड हेलमिंथिक डिजीजेज। सो बैक्टीरियल डिजीजेज जो कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है, जैसे टाइफाइड है, न्यूमोनिया है, डिप्थीरिया है, मेनी अदर डिजीजेज आर देयर। सम ऑफ these diseases will discuss in detail. So next is viral disease, जैसे कॉमन कोल्ड की बात करें, पोलियो की बात करें या HIV की बात कर लो। Then there are many protozoans disease, जैसे मलेरिया है, ओके। Then there are some fungal diseases जैसे रिंगवर्म है। Then helminthic disease जैसे एस्केरियसिस है। तो हेलमिंथिक डिजीज ये किसी होगी? वर्म से होगी। ये किंगडम फंजाई से। प्रोटोजोन किस में हो गया? प्रोटिस्टा का मेंबर है,
वायरस का अलग ग्रुप है और बैक्टीरिया किसका मेंबर है, मोनेरा का। तो हम इस हिसाब से भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, कोई इनके दैट मीन्स क्लास के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी इनसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा वो भी ध्यान रखना कि कौन सी डिजीज है। जैसे मलेरिया पूछ लिया कि ऐसा दे दिया मलेरिया कॉज्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ वी कैन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वहां पर ऐसा लिख दे कि प्रोटिस्टा, तो आप देखो प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा उसका राइट आंसर आएगा। ओके, इसी तरह से बैक्टीरिया में और उनमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम डिटेल पढ़ेंगे 1 by 1 in upcoming lectures. Okay, thank you.